Hello students, I am back with a new chapter that is absorption by roots, which is again a very important lecture. So let's begin with it. First of all, we know that different parts of the plant like roots, stems, leaves, flower, fruit, right? They all have their different important role to play, right? But in this chapter, we are focusing on roots. First of all, what is the function of the root? I hope you all are aware that the function of the root is to fix the plant in the soil, that is anchoring, fixing the plant in the soil. The other is absorbing. What to absorb? To absorb water, to absorb mineral nutrients, right? Because the water acts as a raw material in the synthesis of glucose in the process of photosynthesis, right? So water and minerals are again absorbed by roots. And now when we are talking that water is supposed to be absorbed, what is the need of the water? As I said, water is used up by the green leaves in the process of photosynthesis in order to produce glucose, or in other term you can say in order to produce the food for the plant. So water acts as a raw material, right? The other being a transpiration. What is transpiration? Transpiration is what we can say, it is the evaporation of a water. Okay, evaporation of a water through leaves, through lenticles, okay, where the water vapor is being evaporated, creating a suction force, creating a pull, okay, creating a pull which can draw the water from the root to the leaf, bringing water along with the salt and minerals. Transportation, what is to be transported? Of course, food is to be transported, right? Solution is to be transported. And when we talk about the minerals, so minerals are dissolved in water only. So water is required for dissolving other minerals and salts so that a solution is prepared and provided to the different parts of the plant. Along with these three, the fourth need is mechanical stiffness. Mechanical stiffness means by absorbing water, the barks of the tree or the seed itself becomes very stiff, becomes very rigid. Okay, so this provides a turgidity, or you can say rigidity. So this is the importance of water to the plant. Now, when we are talking about the roots, so what are the characteristic of a root? Okay, so which is giving the roots ability to absorb more and more water and minerals from the soil. So first being a huge surface area. Say in this image, this is the tree and you can see the roots occupying a very large space, growing very deep in order to grab water from different and water from the available part of the ground in order to grab those water and bring it for the plant. So it increases the surface area to absorb more and more water. बहुत दूर दूर तक फैलेंगे तो बहुत ज्यादा उनका सरफेस हो जाएगा और क्या कर पाएंगे, बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे. The second is root hairs containing the solution at a higher concentration. Now what is this root hairs containing the solution at a higher concentration is, see, if I say this is the ground part, okay, this is the ground, this is the root, the solution inside the root is very concentrated. The solution of water, salt and mineral is highly concentrated inside the root, right? And water availability of water molecule is more in this outer part.
ठीक है। तो जब इसके अंदर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो बाहर से जो वाटर है वो क्या होगा, अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का हाई है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का हाई है। तो वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। जो हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं, अभी देखेंगे आगे ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस इज कि वाटर हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा, जहां पर वाटर ज्यादा है वहां से वो फ्लो करेगा जहां पर वाटर कम है, या फिर हम इसको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है। ओके, जहां पे सॉल्वेंट या सॉरी जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्यूट जहां पर ज्यादा है वहां पे वाटर वो खींचेगा दूसरे साइड से जहां पर सॉल्यूट कम है। ठीक है, आगे देखेंगे और डिटेल में। सो व्हाट वी सॉ इज अ ह्यूज सरफेस एरिया जो बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, साथ ही साथ रूट हेयर जिनका अंदर का सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू द ग्राउंड वाटर। द थर्ड थिंग इज रूट हेयर्स हैविंग थिन वॉल्स। रूट हेयर्स हैविंग थिन वॉल्स मींस जो ये रूट है, अगर ये मेन रूट है और उसके बहुत सारे क्या है ऐसे 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 हेयर्स हैं, ये हेयर के वॉल्स इतने थिन हैं कि ये क्या कर सकते हैं, हार्ड से हार्ड ग्राउंड में भी धस सकते हैं और वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। राइट, सी दिस इज हाउ द वाटर इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में। दिस प्लाज्मोडेस्माटा इज द ब्रिज बिटवीन द टू सेल्स। ठीक है, तो एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर, कॉर्टेक्स इज द इनर मिडल लेयर एंड देन एंडोडर्मिस। तो ऐसे क्या हो रहा है, वाटर जा रहा है एंड देन पेरिसाइकल से कहा जाएगा वो जाइलम में, और ट्रांसपीरेशन के वजह से जो पुल क्रिएट हुआ था वो पुल क्या करेगा, जाइलम वाले वाटर को ऊपर खींच के ले लेगा लीव्स के पास। ऑलराइट, सो हमने 3 characteristics of root देखा, that is what a huge surface area, then root containing higher concentration of solution and also having thin surface, thin membrane, right? Then what is the mechanism on which absorption and conduction of water and minerals is dependent? राइट, कैसे होता है, ठीक है, ये कंडक्ट होता है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन कैसे होता है, तो ये 5 फिनोमिना है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन का कार्यक्रम चलता है। सबसे फर्स्ट इज इम्बिबिशन। ओके, इम्बिबिशन इज अ फिनोमिनन बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। इसका मीनिंग ये है कि आपने कभी देखा होगा बारिश में जो लकड़े के दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है, वो क्या होती है, वो थोड़ी सी स्वेलअप हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है। तो इम्बिबिशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ड्राई सीड्स या वुड क्या करते हैं, दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, दे होल्ड अप मॉइस्चर। Right, okay, when they come in contact with the water or exposure to moist, they imbibe, that means they swell up. Right, the second is diffusion. Diffusion simply means, see, this was the example of imbibition कि how the seeds are being swollen. अगर आप देखोगे कि ये जो सीड है, ये सीड जब हम इसको बो देते हैं और पानी इसको मिलता है तो ये वो पानी को इम्बाइब कर लेता है, स्वेलअप हो जाता है और इतना प्रेशर लगाता है अपने मेम्ब्रेन्स पे कि ये क्या कर सकता है, अर्थ जो इसके ऊपर का लेयर है उसको ब्रेक करके ये बाहर आ सकता है। देख रहे हैं आप कैसे? ओके, second is diffusion. Diffusion is this is a flow of a molecule from the region of their higher concentration to the region of lower concentration. Simply जो हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं कि लीव्स है, लीव्स में स्टोमाटा है,
स्टोमाटा से क्या हो रहे हैं, जो स्टोमाटल अपर्चर है ये वाला, इसमें से गैस डिफ्यूज हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकता है, ऑक्सीजन बाहर जा सकता है ना। तो सिंपली क्या है, डिफ्यूजन। जो जिसका हायर कॉन्सेंट्रेशन जहां पर है वो वहां से कहां पे फ्लो करेगा, उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे फ्लो करेगा। अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो प्लांट के लीफ के अंदर फ्लो करेगा, और अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो बाहर जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। फिर ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस हमने क्या देखा कि मान लो ये अगर दो सोल्यूशन होते, ये ए होता और ये बी होता, और ये क्या है, हमारे पास एक और अच्छी इमेज है उसमें देखते हैं। ये देखो ऑस्मोसिस है, आप इजीली मेक आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, वाटर यहां पर ज्यादा है तो इसके लिए वो यहां से यहां पर फ्लो करेगा। ठीक है। और ऑस्मोसिस के लिए कंडीशन ये है कि बीच में हमेशा क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन, जबकि ऐसी कुछ कंडीशन डिफ्यूजन के लिए नहीं थी। ठीक है। तो ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर रात को हम रेजिन्स भिगाते हैं और सुबह देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्वेलअप। तो जो रेजिन होते हैं उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा काम करता है, जो क्या करता है, कंटेनर का वाटर को बाहर से अंदर आना अलाउ करता है। Right? So this is called semi-permeable membrane. So in osmosis, water flows from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. और इसको दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि in osmosis water flows from the region of lower solute concentration to the region of higher solute concentration. Right. And then the fourth phenomena is active transport. देखो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, यहाँ पे देखिए ये है फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये। ओके, फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है। कोई मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी सेल के बाहर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो इजीली क्या कर सकता है, डिफ्यूज हो सकता है और सेल के अंदर आ सकता है ना, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो ये पैसिव डिफ्यूजन है जिसमें कुछ भी एनर्जी भी खर्च नहीं होगी और जो बहुत ही इजीली हो जाएगा। लेकिन इसका ऑपोजिट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें देखिए अगर ये आउटसाइड एनवायरनमेंट है सेल का और ये इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल का, यहाँ पर ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स कम है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन दिस इज passing on to the region of its higher concentration, which will involve the expense of energy. यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बाढ़ आ जाए और ऑलरेडी हमारे घर के बाहर पानी ज्यादा है ना, और हमारे घर में भी पानी भर गया है, तो जब हम घर से पानी बाहर फेंकेंगे जहां पर ऑलरेडी ज्यादा है तो वो कितना मुश्किल काम है। Right, in the same manner. So active transport always it is from the region of its lower concentration to the region of its higher concentration. This is against
the concentration gradient, which requires the use of energy. All right. And then the other topic is a tonicity. What is a tonicity? It is a relative concentration of the solutions that determine the direction and extent of diffusion. के एक्चुअली जो सोल्यूशन है ना, उसका रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन. अब जब हमने रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन बोला है तो हमें यहाँ पर दो चीजों को रिलेट करना है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये हमारे सेल है, ये रेड ब्लड सेल है जो कि एक पेट्री डिश में रखे हुए हैं. ठीक है. और इस पेट्री डिश का जो इसमें सोल्यूट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो हम बोलेंगे दिस सोल्यूशन इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन. हाइपरटोनिक मतलब सोल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है. तो जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो H2O है ना, वो क्या हो जाएगा, वो बाहर स्क्वीज आउट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर का जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल मीडियम, है ना. तो वाटर अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर, तो वाटर क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर फ्लो हो जाएगा. राइट. दिस इज हाइपरटोनिक कंडीशन, जिसमें क्या होगा, आप देख सकते हो जो आरबीसी है वो क्या हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं. क्या हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं. राइट. और यहां पर वाटर का फ्लो सेल के अंदर से बाहर हुआ है, इसके लिए हम इसको एक्सो ऑस्मोसिस कहेंगे. एक्सो मीन्स आउट और वाटर का फ्लो बाहर आ गया है. एक्सो ऑस्मोसिस वेयर द मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्रॉन outside the cell. Right. Then there is isotonic condition. Isotonic means where the amount, you can say the solute और solvent की मात्रा बराबर है और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो सेल का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या हो रहा है, मैच कर रहा है. तो ना सेल से पानी को बाहर जाना है और ना बाहर से पानी अंदर आना है. यहाँ पे कंडीशन कैसी है, स्टेबल है. ठीक है. द थर्ड इज हाइपोटोनिक, जहां पे सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है. मतलब ये जो डिश का सॉल्यूशन है वो क्या है, ज्यादा डाइल्यूट है एज कंपेयर टू आरबीसी. ठीक है. तो क्या होगा, ये आरबीसी का जो अंदर का कंडीशन है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एज कंपेयर टू बाहर के कंडीशन से. तो ये क्या करेगा, ये बाहर से पानी को अंदर खींचेगा. तो यहाँ पर पानी इनवर्ड आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे. एक बार अच्छे से पूरा इमेज देखो और समझने की कोशिश करो कि किस तरह से डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है सेल्स पे. राइट. तो क्या होगा, जब हाइपरटोनिक कंडीशन था तो सेल क्या हो गए, श्रिंक हो गए. जब हाइपोटोनिक था तो सेल क्या हो गए, स्वेलअप हो गए. और जब आइसोटोनिक था तब यहाँ पे हमको कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा है. राइट. ओके. तो इसे हम कहेंगे टर्जिडिटी. मतलब देख सकते हो आप कि सेल्स इतने वाटर अंदर ले लेके इतने ज्यादा स्वेलअप हो गए हैं, अपने मेम्ब्रेन्स पे इतना ज्यादा प्रेशर दिया है कि सेल्स बर्स्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, सेल्स बर्स्ट भी हो सकते हैं. और ये क्या है, दिस इज अ प्लाज्मोलिसिस और फ्लैसिडिटी जिसको बोल सकते हैं, जिसमें सेल क्या हो गए हैं, एकदम पचक गए हैं, श्रिंक हो गए हैं. एंड हियर देयर इज नो चेंज. राइट. See here, a turgid cell
फ्रॉम अ लीफ विथ इनफ वाटर। अगर देखो ये हमारा पॉट है, यहाँ पर हम वाटर डालते हैं, प्योर वाटर, तो उसको एब्जॉर्ब करके सेल्स क्या होंगे, स्वेलअप होंगे, टर्जिड बनेंगे। तो हमें लीफ ऐसा दिखाई देगा कि सारे सेल्स कैसे हैं, टर्जिड हैं, ठीक है, फुले हुए हैं। और अगर हम शुगर सोल्यूशन डाल दे या सॉल्ट सोल्यूशन डाल दे तो क्या होगा, जो इनके अंदर का वाटर है वो भी क्या कर लेंगे, वो सोल्यूशन खींच लेंगे, जिसके वजह से सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे और कंडीशन क्या होगी, फ्लैसिड। ये फिनोमेना हम यूज करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम पिकल्स में, अचार में बहुत ज्यादा नमक डालते हैं, मुरब्बा में शक्कर डालते हैं, तो उसका रीजन यही रहता है कि जो भी बैक्टीरियाज या जर्म्स वहां पर हो तो हम ज्यादा शुगर और सॉल्ट के एडिशन से क्या कर ले, बैक्टीरियल सेल का पूरा वाटर बाहर निकाल ले, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल श्रिंक हो जाए और वो मर जाए, जिसके वजह से हमारे अचार या मुरब्बा की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। यही फिनोमिना को हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं। जब जो हमें अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को से रिड पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, वी यूज दिस मेथड, राइट। देन what are the forces contributing to the ascent of sap? A sap is the solution containing water and minerals, right? Now ascent means the upward movement, the upward movement, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो तो कहां पर होगा, वो लीफ में होगा, और जो वाटर है वो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का लीफ के यहाँ पर होना जरूरी है। तो किस तरह से हम लोग नीचे से जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है उन वाटर को कैसे हम लीफ तक पहुंचाएंगे। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग इज रूट प्रेशर। व्हाट इज रूट प्रेशर? रूट प्रेशर इज द प्रेशर इनसाइड द रूट। जैसे हमने देखा कि जो सेल्स है वो स्वेलअप हो जाएंगे, जब वो स्वेलअप हो जाएंगे वाटर एब्जॉर्ब कर करके, तो वो क्या बनाएंगे, वो रूट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, राइट। द सेकेंड बीइंग कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी बिकॉज ऑफ जाइलम वेसल, जाइलम वेसल विच इज अवर कंडक्टिंग टिश्यू, जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, है ना। तो ये इतने बारीक होते हैं, नैरो होते हैं, कि जिसके वजह से अंदर जो कैपिलरी प्रेशर है वो ज्यादा लगता है। जितना नैरो ट्यूब होता है उतना वाटर ज्यादा राइज करता है। ओके, y'all can see here. Because the capillarity is the tendency of a liquid in a capillary tube or absorbent material to rise or fall as a result of surface tension. बोलने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा पतला होगा वेसल, उतना ज्यादा जो वाटर है वो क्या होगा, हाई राइज करेगा। ओके, तो जब हमारा लीव्स से ट्रांसपिरेशन होता है तो उस ट्रांसपिरेशन के वजह से जो सक्शन पुल क्रिएट होता है, तो वाटर जल्दी जल्दी क्या होता है, जाइलम से राइज करता है। देखिए यहाँ पर हो रहा है ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर लॉस हो रहा है। तो वाटर लॉस हो रहा है तो क्या बन रहा है, एक खिंचाव बन रहा है। तो इस खिंचाव के वजह से, इस सक्शन प्रेशर के वजह से जो वाटर है क्या हो रहा है, जाइलम के थ्रू राइज कर रहा है। ओके, then the other is adhesion cohesion theory. Adhesion means what? आपने देखा होगा कभी अगर आप फेविकोल या कोई ग्लू लाते हैं तो उस पर लिखा होता है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है कि वो क्या कर सकता है, किसी दो डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, स्टिक कर सकता है, राइट। और तो इसका मतलब एडहेशन फोर्स क्या है, कोई भी ऐसा फोर्स जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को क्या कर सके, बाइंड कर सके। और कोहेशन ऐसा फोर्स होता है जो सेम मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो मान लो कि ये जाइलम है, ये जाइलम को से अगर वाटर को ऊपर जाना है तो जाइलम को
जाइलम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको जाइलम को भी पकड़ रहना होगा और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को भी पकड़ रहना होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल ये जाइलम के वॉल को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इनके और इनके बीच में एडेशन है और ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को पकड़े हुए हैं, दूसरा तीसरे को पकड़ा हुआ है, ये कोहेशन फोर्स है। ओके, तो ये भी मदद करता है वाटर को रूट से लीफ तक पहुंचाने में। दिस इज कॉल्ड एडेशन कोहेशन थियरी, राइट। So this was all from my side on the absorption of roots. I hope the video was useful and you understood. If there is any query, kindly write to me in the comment section. I'll reply to it. Thank you. Have a great day.